हेलो। अ, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर दिसंबर 2021 का एंड जून 2022 का इंग्लिश पेपर है। ये इसको सोल्व किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है और इसका यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं और उसके नीचे इसका डिटेल आंसर है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन? लिटरेचर ऑफ देयर ओन का ऑथर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज चंद्र गिलबर्ट एंड सुसान गब्बर। सेकेंड इज एलाइन शोवेल्टर। थर्ड इज वर्जीनिया वुल्फ। फोर्थ इज सिल्विया प्लैथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है A literature of their own is written by an American literary critic and feminist. The term gynocriticism was introduced by her. अब gynocriticism से सब इंट्रोड्यूस होंगे। Her a literature of their own talk about the female literary tradition with the analysis and evolution through three phases which are, अब इसमें बताया गया कि three phases कौन कौन से हैं। Imitation of modes of dominant tradition and internalization of artistic and social values. Okay. Second is protest against these standards and values and a call for autonomy. Third one is self-discovery, turning inward, free from some of the dependency of opposition. So इसका जो right answer है वो है एलेन सोवेल्टर is correct answer. तो a literature of their own ये किसके द्वारा लिखा गया है? एलाइन शोवेल्टर के द्वारा लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। तो जेंडर एंड नेशन एंड इधर ऑप्शन दिया गया है तो हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ से चूज़ करेंगे। आंसर में दिया गया है इन द गिवन ऑप्शन द सोल ऑफ ब्लैक फॉक। The Soul of Black Folk is written by W.E.B. Du Bois. ठीक है। The Sound of a Black Folk is written by W.E.B. Du Bois. It is about the legacy of racism the black people were facing in the form of physical abuse, paternalism and economic disenfranchisement. ठीक है। The subject of tragedy moves around the differential identities of men and women. ठीक है। In this book, Catherine Belsay has depicted the specific period in which man was the subject to which woman was related. Whole the Greek homosexuality is based on homosexuality in ancient Greek, written by the classical scholar Kenneth Dover. Gender and Nation is written by Neera Yuval Davish. जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? डी विल बी करेक्टेड आंसर। अब डी करेक्टेड आंसर हम देखेंगे फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ। ठीक है। जेंडर एंड नेशन रिटन बाय नीरा युवल देविश। सेकेंड इज बी का सेकेंड। तो ग्रीक होमोसेक्सुअलिटी इज रिटन बाय के.जी. डोवर एंड थर्ड का फर्स्ट। द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी इज रिटन बाय कैथरीन बेल्सी। ओके। एंड फोर्थ ऑप्शन डी का थर्ड द सोल ऑफ ब्लैक फोक। डी का थर्ड W.E.B. Du Bois। ठीक है। सुब्रमणी फैंटेसी एटर्स 1988 इज़ अ क्या है? ये नोवेल है या कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है या कलेक्शन ऑफ ऐसे है या पोएम है? तो सुब्रमणी फैंटेसी एटर्स 1988 is a collection of short stories. तो ये क्या है? It's a collection of short stories. 9 short stories. इसमें कितनी short story है? 9 short stories. The work focus on the ways in which transplanted Indian tradition both nature and suffocate the Iceland immigrant and their डिसकंडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। सुब्रमणी फैंटेसी एस्टर क्या है? ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का।
हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएम द हाउस ऑफ फेम? ओके, तो द हाउस ऑफ फेम इसका ऑथर कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विलियम लैंगलैंड, जियोफ्री चौसर, थॉमस मोर, फिलिप सिडनी। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। द हाउस ऑफ फेम इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल ड्रीम एलेगरी इन 3 बुक्स। ओके, 3 बुक्स written by Geoffrey Chaucer. This work comes under Italian period of Greek Chaucer. In book 1, the poem dreams about a temple of Venus where he found inscription of Ennoid. In book 2, the poet carried away by the eagle to the house of fame, while book 3 talk about the poet's difficulty in climbing on the high rock on which the house is situated. The option B will be correct answer. So option B is Geoffrey Chaucer. Okay. And 5 is, which of the following denote the 3 phases of literary feminism according to Elaine Swelter? ठीक है, कि किसने 3 जो फेजेस हैं फेमिनिज्म के कौन कौन से हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फेमिनाइन, गैनिक, वुमेनिश, फेमिनिस्ट और फीमेल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन लो। ठीक है, आंसर हम देखते हैं। द 3 फ्रेजेज ऑफ लिटरेरी फेमिनिज्म अकॉर्डिंग टू एलाइन सोवेल्टर आर, फर्स्ट इज फेमिनाइन। ठीक है, वुमेन राइटर इमिटेट मैन। इमिटेट मतलब होता है नकल करना। ये जो वुमेन जो राइटर्स होती है इमिटेट करते हैं किसका? मैन का। द फेमिनिस्ट वुमेन एडवोकेटेड माइनॉरिटी राइट्स। ओके, एंड द फीमेल। ओके, the focus is now on women's text as opposed to merely uncovering misogyny in men's text. This option B is correct answer. ठीक है, ऑप्शन बी में हम क्या देखते हैं? ए फेमिनाइन, डी फेमिनिस्ट एंड ई फीमेल। तो जो फर्स्ट जो फेज था वो फेमिनाइन था। ठीक है, वुमेन राइटर इमिटेट मैन। ओके, सेकेंड था फेमिनिस्ट वुमेन एडवोकेटेड माइनॉरिटी राइट्स, और थर्ड वन इज़ फीमेल द फोकस इज़ नाउ ऑन वुमेन्स टेक्स्ट एंड अपोज टू मेनली अनकविंग मिसोगिनी इन मेंस टेक्स्ट। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ फेमिनाइन, फेमिनिस्ट एंड फीमेल।